اب تیسرے دم کے لیے آپ نے جو چیز دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. جو چیز آپ نے دم کے لیے لائی اسے اوپر کیجئے. اوپر کیجئے. اوپر کیجئے جو چیز آپ نے دم کروانے کے لائی ہے. اب خصوصی طور پہ دم ہو گیا ہے اور ابھی دم کا کرم اور مہربانی دیکھیں گے کہ میرا رب کس طرح آپ کو شفاعت اور کرم اور مہربانی کرتا ہے. آپ کے دل و دماغ کے اندر ابھی انشاءاللہ خصوصی طور پہ دعا ہوگی اور دعا کے اگر آپ شریک ہوں گے. بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن وہ غریب رب بڑا مہربان ہے. وہ ایک مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. ابھی حضور کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے. ضرور حضور کے صدقے سے, حضور کے کرم سے, حضور کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بھی سنے گا, ہماری مشکلوں بھی آسان فرمائے گا, ہمیں ان شیطانی چیزوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور تمام پہ خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے گا. جو حاجت ہے ابھی دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ابھی دعا کا وقت ہے. بہت بڑی تعداد میں اگر سارے ایک ہی وقت میں چلنے شروع ہو گئے تو آپ کا نکلنا یہاں سے مشکل ہو جائے گا. آپ کو یہ میرا پیغام ہے کہ آرام سے تو کریں, چپ کریں تو موتی ملن, صبر کریں نہ ہیرے, اگلا مانگو شور بچاویں نہ موتی نہ ہیرے. اس لیے صبر سے انشاءاللہ آپ شفا بھی پاتے جائیں گے, کرم بھی پاتے جائیں گے اور خدا کی مہربانی بھی پاتے جائیں گے. انہی محبتوں میں, انہی چاہتوں میں انشاءاللہ 24 تاریخ کو بروز ہفتہ کو عالمی راجداری نبوت کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے. اس اسی ماہ کی 24 تاریخ کو تمام عقیدت مند اس حضور کی محفل میں ضرور تشریف لائیں اور آپ اس مبارک محفل کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو شفاعت بھی کیسے دیتا ہے اور حضور کی محبت بھی اپنے سینے کے اندر کس طرح جاتی ہے. اس لیے آپ سبھی لوگ انشاءاللہ اس محفل کے اندر تشریف لائیں. ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں, دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. بتانا یہ منہ سے یہ ابھی جو دعا ہوئی ہے یہ نار کے ذریعے, یہ دیکھیں یہ پوری نار ہے, اس کو کھولیں. اللہ والوں کی میں نے پہلے گزارش کی تھی اگر انسان کے اندر لوہے اللہ والوں کو نظر آ سکتے ہیں تو اگر آپ سڑک پہ ہیں یا چوک میں ہیں یہاں کھڑے ہیں تو بادشاہ سرکار کو کی نگاہ آپ کو دیکھ سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ خوشاب سے آئے ہیں اور یہ جو تار ہے ابھی بادشاہ سرکار نے جو دم کیا اور اس یہ جو آپ کے بائیں طرف جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ جو بیٹی کھڑی ہے اس کے ناک کے ذریعے اور یہ اس کے اندر منہ کے ذریعے یہ جو تاریں ہیں یہ اس کی جیب سے نہیں نکلی
उसके पेट के अंदर से निकली है। और ये निकालना कोई आसान बात नहीं है। ये लोग वहां पे होता है जहां मेरे नबी का कर्म होता है। अल्लाह वालों की बस्ती में जो लोग दाखिल हो जाते हैं तो मस्जिद खुद ब खुद बोलती है। आज हम लोग इस बात में तनकीद करते हैं और ये बात सोचते हैं कि ये मस्जिद कैसे ठीक होती है। दोस्तों, ये मस्जिद ठीक नहीं की जाती। ये मस्जिद गुंबद खजरा से ठीक हो जाती है। तो जब करने वाला मालिक कर दे तो फिर हमें मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए, तहस्सुद की निगाह से देखना नहीं चाहिए। ये मुंह के अंदर से तारे निकालना ये मेरे अल्लाह का काम है। निकालता अल्लाह है और अल्लाह अपने बंदों की करामत दुनिया को दिखा रहा है। लोगों देखो, आओ मेरे बंदों के दरवाजों पे जो काम कहीं से नहीं होता, जो मर्ज कहीं से खत्म नहीं होती, वो अल्लाह वालों के दरवाजों पे खत्म हो जाती है। ये आप देखें, ये इंसान की अकल और करामत होती वो है जो ना इल्म में आ सके ना अकल में आ सके। इसी को करामत कहते हैं। अगर करामत जो है वो अकल में आ जाए तो वो फिर करामत नहीं रहती। करामत होती वो है कि दुनिया कई 100 साल वो सोचती रहती है कि ये कैसे हुआ। ये रहती दुनिया सोचेगी। लोगों देखो कि वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर दरबारे अली शरीफ जब निगाह करता तो लोगों के अंदर से गिरे हुए लोहे और तारे वापस आ जाती थी। और ये लोग इस तरह हम तस्करा दाता दरबार में जाने वालों तो दाता लोग क्या करते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन और ये अल्लाह का जो करम के किताबों के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और जिस तरह हम अपनी ज़बान किताबों तहरीरों में पढ़ते थे, आज वो करम थे दरबार अलिया मुनावरा शरीफ के जानशी शहजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की निगाह से और एक या दो ये छुप कर, ये किसी कमरे की बात नहीं है, इन तारों को निकलते हुए जिन जिन लोगों ने देखा है जरा हाथ खड़ा करें। ये कोई कमरे में तारे नहीं निकाले गए, ये स्टेज के इर्द गिर्द छुपा कर नहीं निकाली गई, बल्कि ये तारे अल्लाह के वली की निगाह उठी और आप लोग देख रहे थे और दोनों हाथों को बुलंद कर ले, क्योंकि ये अल्लाह आपको आपके बाजों को सलामत रखे। आपकी गवाही से लाखों करोड़ों बद अकीदों के अकीदे ठीक हो जाएंगे। ये अगर ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर काश ये कोई स्टेडियम होता, लियाकत बाग होता या इस्लामाबाद का कोई ये सरजमीन होती कि जितने लोग यहाँ पे हैं इतने लोग आ रहे हैं, काश उनका तारों को वो जो लोग चौक पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, आए हैं, काश कि अगर ये हजारों लोगों के आने रसूल के उठे हाथ अगर कोई बात अमीदा देख लेता तो वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। और अगर कोई मेरा भाई कलमा पढ़ने वाला अगर उसका अमीदा दुरुस्त नहीं था, अगर वो इन हाथों को देखकर वो अपने अमीदे को दोनों हाथों को उठा ले ताकि आप इन हाथों को देखकर वो अमीदा इस अनंता अलैहिम इस रास्ते में आ जाए, ताकि उन लोगों के अकीदे ठीक हो जाए कि लोगों दरबार अली मुनावरा शरीफ ने वैसे ताजदार खत्म नबूवत का नारा नहीं लगाया। ये फैसला गुंबद खतरा से हो चुका है, ये निगाह बगदाद से हो चुकी है, ये परवाज यहाँ से नहीं है, ये मदीने से है। और जिसमें मदीने वाले का ये मोजज़ा है, मेरे आका का ये मोजज़ा है, मेरे आका की तवज्जो पत्थरों पे पड़े तो पत्थर कलमा पड़े उसे मोजज़ा कहते हैं।
तक कलमा पढ़ने वाले के हाथों से अगर ये निगाह से तारे बाहर निकले तो उसे वली की करामत कहते हैं। नबी का मोइशा होता है और वली की करामत होती है। ना मोइशा इंसान की अकल में आ सकता है और ना वली की करामत इंसान की अकल में आ सकती है। लोगों को ये लोग जो उंगली उठाते हैं, काश उनके बेटी उनका बेटा होगा, रब गवाह है वो जीते जी बन जाते। इसलिए ये सदमा और ये दुख, ये परेशानियां बर्दाश्त करना आसान नहीं होती। अल्लाह खतीब हुसैनी बादशाह सरकार को लंबी जिंदगी अता करे कि आप रात को देखें कलम सैदा में, अगर वो आंखों से अंदर आए उसको अल्लाह आंखें दे दे। लोग इसलिए दादा हुजूर की बारगाह में जाते थे कि जब बेसहारा हो जाते थे, कहीं से बात नहीं बनती थी, वो दादा के दरवाजे पे जाते, काम हो जाता। अगर काम नहीं बनता था वो निजामुद्दीन औलिया के दरवाजे पे दस्तक देते, उनका काम हो जाता। अगर किसी का काम न होता तो ख्वाजा मुइनुद्दीन के दरवाजे पे दस्तक देते, ये काम हो जाता। अल्लाह काम पूरे कर रहे हैं, फरमाया काम भी दे रहे हैं, ये बंदे भी दे रहे हैं। और लोगों ये तारे खुशाल निकलती बनी निकल सकती थी, लेकिन यहाँ क्यों निकली? यहाँ रब का बंदा बैठा है, निगाह करे तो वो करामत ज़ाहिर होती है। मेरे दोस्तों, हर दौर में अल्लाह के वलियों की करामत रही और इंशाअल्लाह सबों के अमल तक हाथ उठा के इस बात की तईद कर दीजिए कि सबों के अमल तक अल्लाह के वलियों की करामत इंशाअल्लाह रहेगी, इंशाअल्लाह रहेगी। जब अल्लाह के वली है तो अल्लाह के वलियों की करामतें भी हैं। बोलो अल्लाह के वलियों की करामतें हैं। जो अल्लाह का वली है उसकी करामत भी है, अगर जो नहीं उसकी करामत भी नहीं है। इसलिए आप हजारों लोग यकीनन और आपकी आंखों के आंसू इस बात की दलील है, इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह बादशाह सरकार को लंबी जिंदगी दे, कि आपकी निगाहों में, आपके हाथों में, अल्लाह आपकी ज़बान पे तूने इतना कर्म रखा है मालिक कायनात। देखिए ये दुखी दिलों के सहारा और दुखी इंसानों के सहारा बादशाह ने जानी में तेरे ये बात कही थी कि मैं अल्लाह के खौफ से अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ, हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ और हुजूर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की जान में अपने मुर्शिद की अकीदत में दे रहा हूँ। मेरे दोस्तों ये इज्जतें हमारे हाथों से नहीं दी जाती, ये इज्जत का ताज मेरे आका के हाथों से बनाया जाता है। ये गुंबद खदरा से फैसले होते हैं और मैं देखने वालों को, सुनने वालों को ये पैगाम दूंगा, मेरे दोस्तों और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इस बात को अपनी सर की आंखों से देख लें कि अगर अल्लाह का वली निगाह करे तो वो अंदर से ये जो है और ये तारे बाहर आ सकती हैं। हमारे जिस्म की बीमारियां भी इनकी निगाह से खत्म हो सकती हैं।